Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine. Happy Ramadan to all of you. Student, this is class 9th NIV. Okay, I'm your English teacher, Sir Junaid. So today we are going to start our new lesson, our new chapter, that is unit number 3rd, Media and its Impact. आज का जो हमारा न्यू लेसन है वो है बेटा मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी मीडिया और इनका असरात. ओके, इम्पैक्ट असर. बेटा इन दिस लेसन मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस यूनिट के. इस यूनिट में हमारे पास क्या है, किस चीज़ के बारे में है. ओके, so students, this unit, इसके नाम से पता चलता है, it is about media. और आप लोगों को मीडिया का पता है. ओके, व्हाट इज मीडिया? ओके, ज़राए अबलाग उसको हम उर्दू में कहते हैं. मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी मीडिया और इसके असरात. यानी we will study about media, its and its impact on society. इम्पैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड advantages of media. So this lesson is about the impacts of media on society, and we will study about types of media, and we will study about the function, the main function of media, that main function that media perform. Uh, you know about media, that media is called fourth pillar of the state. एक मुल्क में मीडिया को it is given a very important, a lot of importance have been given to media. Media plays a very vital role in our society. It shares the news, it highlights many social issues, it conveys, and it gives any kind of news, it shows us, it informs us about everything that is occur in any corner of the country or outside from the country. मीडिया जो है ये हर चीज़ का हमें बताते हैं, कोई भी चीज़ मुल्क में या मुल्क से बाहर, दुनिया की किसी भी कोने में जो भी हो रहा है, मीडिया informs us. Okay, so this lesson is about media. Okay, now I'm going to start the lesson. Lesson में है कि student, this is a kind of discussion class. डिस्कशन ये है कि एक मैम है, एक टीचर है, फीमेल टीचर है, हर नेम इज मिस आयशा, और वो क्लास में आके बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मीडिया के बारे में डिस्कस कर रही है. यानी शी इज डिस्कसिंग अबाउट मीडिया, फंक्शन ऑफ मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया विद हर student. Okay, so now Miss Aisha, she is the student, a teacher of class 9, class teacher. So I hope it would be clear to you. So we will study about media. Okay, now we are going to start our lesson. ये कहता है कि बेटा आप रीडिंग कर ले ज़ुहैब, यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ. यस. Okay, sir. Miss Aisha is a favorite teacher of class 9th. The students eagerly attend her class. Miss हेलो ज़ुहैब. यस कासिम, सर रीडिंग करें? आप कर ले हो ज़ुहैब. Aisha at room with ओके, her लेट user role call. ज़ुहैब को Is there चलो आप बाद में कर ले. ज़ुहैब यस कंप्लीट, आपकी नेट की प्रॉब्लम आ रही थी. यस बेटा. Miss is there Aisha particular is day? the favorite teacher of class 9. The student eagerly attend her class. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. It is their tutorial day. The students all are geared up. They know what is about to Okay, come okay, and just they a are minute, just a prepared to. minute, just a minute. Okay, just a minute. Okay, कहता है कि मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9. मिस आयशा क्लास 9 की एक
फेवरेट टीचर है, पसंदीदा टीचर है, यानी शी इज द फेवरेट. Miss Aisha is an English teacher and she is the teacher of class 9 and she is very popular teacher and she is the favorite teacher. Okay, the students eagerly attend her class. Eagerly का मतलब है शौक से, बेताबी से, excitedly, eagerly. Eagerly mean बेताबी से, शौक से, enthusiastically we can say. Okay, तो ये कह रहे हैं कि तलबा जो है शौक से उसकी क्लास में हाजिर हाजिर रहते हैं, यानी तालिबात यानी तलबा इनकी जुमात में बड़े शौक से हाजिर होती है. ओके, दे आर विलिंगली टेकिंग हर क्लास, दे आर कीन, दे आर इंथुजियास्टिक टू अटेंड हर क्लास. इंथुजियास्टिक का मतलब है शौक हो, जब आप किसी काम के लिए आप शौक हो, व्हेन यू आर इंथुजियास्टिक दैट इज कॉल्ड ईगर. I'm कहते हैं ना, I'm eager, I'm excited, I'm enthusiastic. Okay, when you take interest in something, जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, so we can say enthusiastic. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile. कहते हैं कि मिस आयशा अपनी जो हमेशा की तरह यूजुअल स्माइलिंग के साथ, मुस्कुराहट के साथ क्लास में एंटर होती है. ओके, यूजुअल स्माइल का मतलब है बेटा कि जो यानी it means that whenever she enter to a class, Miss Aisha, whenever she comes into the class, so she enter the class with a having a smile on her face. रोज यानी इसकी एक डेली हैबिट है कि whenever she enter to class, so she having a smile on her face. Okay, I hope it would be clear. Now the next paragraph, it is their tutorial day. Okay, tutorial day का मतलब ये इनके डिस्कशन का डे है. ट्यूटोरियल का मतलब है डिस्कशन. ओके, the students are all geared up, यानी geared up का मतलब है बेटा ready. Okay, they are ready to attend her class. Sorry, इधर एक look at this. Miss Aisha enters the classroom with her, greets the student and takes the roll call. और यानी she greets the student, तलबा को सलाम करती हैं, and take the plug और roll number यानी हाजिरी लेती है. Okay, after greeting her student, she takes the attendance of her class. It is the tutorial day. ये it was a day of discussion. It was a day of discussion. The students are all geared up. सारे जितने भी तमाम तलबा तैयार थे. Okay, they know what is about to come and they have all prepared for it. वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और उसके लिए तैयार हैं, यानी वो पहले से तलबा को they know that what is the topic of today discussion, यानी they know that today our topic that is about media its impact, so they were well prepared. वो बिल्कुल तैयार थे, वो तैयार होके आए थे, यानी they are eagerly, they were eager, they were enthusiastic to participate in the class. Okay, so it means that the students are ready to take part in group discussion. Okay, so it means that you must participate in your classes. The students are, they know about what about. Shall we start? She asked politely. Ma'am Aisha, now she is asking from her student that shall we start? क्या हम शुरू करें? उन्होंने शाइस्तगी से पूछा. क्या इसका मतलब है पोलाइटली का मतलब है बेटा नरमी से, अच्छे तरीके से. ओके, इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर. ओके, ये स्टूडेंट्स नोड, नोड का मतलब है बेटा सर हिलाना, सर हिलाना. ओके, इसका मतलब है ना कि आप किसी चीज बात से एग्री हो, जब आप सर हिलाए कि यस वी शुड स्टार्ट. स्टार्ट. टीचर, टीचर मीन मिस आयशा. ओके, सो वी हैव डिसाइडेड अर्लियर. अर्लियर का मतलब है यानी हम पहले से ये डिसाइड कर चुके हैं, तय कर चुके हैं. द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज रोल ऑफ मीडिया इट्स एंड इट्स इम्पैक्ट. हम पहले से ये तय कर चुके हैं कि आज की जो हमारा जो डिस्कशन की जो टॉपिक है दैट इज है मीडिया और इसका असर. To start with, let me start clearly that media is the most powerful mode of communication. Okay,
It shares news and information with the people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Okay. So this bit is about the media, the function of media. Yahan Miss Aisha, she talks about the function of media. Okay. Yani she said that the teacher announces the topic for discussion. So she said that we have already decided that what will be the topic of today's discussion. The topic is the role of media in its impact. Asarat. She started the discussion by saying that media is the most effective means of information. Most powerful mode of communication mean most effective मुहस्सर बिल्कुल बासर means of communication जराए अबलाग का मीडिया का फंक्शन क्या है communication है ना लोगों को communicate करना it shares the news information with the people ये लोगों के साथ या अवाम के साथ information का तबादला यानी मालूमात का तबादला करता है ठीक है it means that it shares the news and views to the people okay it means that it gives people unreal report but commonly it tells us the truth okay now the next line sometimes media spread false news but generally it informs us about the facts around it कहते हैं कि sometime media जो है ना ये एक प्रोपेगेंडा कर रहा है it spread the false news false mean unreal news गलत news okay कहते हैं बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है लेकिन आम तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द के हकायक से आगाह करते हैं फैक्ट्स हकायक ये हमें आगाह ठीक है Okay, so now she asked from her student that do you agree? क्या आप इस बात से agree हैं मुत्तफिक हैं? Student say yes we do, yes we are agree. You are absolutely right. What you have said, we agree, we accept that media shares information with the people. Okay, it highlights the facts what are happening in the society. It conveys the fact. It tell us about the facts, hakikat. Okay. Okay, sorry यहाँ yes so student one अभी क्लास चूंकि डिस्कशन हो रही है बच्चे भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं क्लास में तो इसमें एक बच्चा कह रहा है यस वी डू जी हम मुत्तफिक हैं स्टूडेंट एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जिस तरह आप में से एक स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट रेज his hand so he said that I would like to add a bit more to it कहते हैं कि मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ यानी I would like to add something more I would like to say समथिंग मोर वो क्या कह रहे हैं मैम कह रहे हैं कि यस श्योर कहते हैं कि यस यू कैन ओके सो स्टूडेंट वन जो है वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अच्छा ये कह रहे हैं कि देन अ स्टूडेंट the student then the man who takes part in the conversation and said that media gives them information about the world यानी वो क्या कह रहे वो स्टूडेंट वन मीडिया दुनिया के इल्म को फैलाने में लोगों की मदद कर रहा है ये स्टूडेंट वन कह रहा है यानी इट मीन दैट ही सेज दैट मीडिया gives them the information about the world okay their feelings and opinion are expressed through it their feelings and opinion expressed through it यानी इनके जज्बात एहसासात का इजहार इसके जरिए होता है ओके यानी we can say that media is the only effective okay let me to enter this student okay so we can say that media is the only effective means to express their feelings in thoughts sentiment okay opinions ये वाहिद जरिया इट इज़ द ओनली इफेक्टिव मीन्स एक वाहिद मौसर जरिया जिसके जरिए हम अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हैं मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस ओके मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस देखें ना आजकल आप लोग देख लें सारे लोग एवरीवन इज वाचिंग न्यूज़ एवरीवन using social media so everyone is attracted by
media. So we can say that media is capable of obtaining the heat. Heat means the attention of very large number of people. ठीक है, so ये कह रहा है कि मीडिया नाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज है। यहाँ देख ले बेटा, मीडिया अट्रैक्ट्स, ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस इन द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज आइडियाज। आइडियाज कहते हैं नाजरीन को, सुनने वालों को। लार्ज हमारे पास एडजेक्टिव है और वेरी क्या है, एडवर्ब है। सो आई विल टेल यू व्हाट इज एडवर्ब। Have you noticed that the first thing that we do soon after entering the house is to switch on the television? कहते हैं, वो स्टूडेंट वन कह रहे हैं, क्या आपने कभी महसूस किया कि हम घर में दाखिल होते ही सबसे पहले टेलीविजन चलाते हैं? यानी लोगों की, यानी he says that the student one, he asked other student a question to enhance their interest in the debate. So कह रहे कि शायद this time शायद मैम Aisha, she was asking that the first thing that when we do after entering the house to turn on the TV, to switch on the TV, to turn on the TV, ज़्यादातर हमारी एक आदत बन चुकी है। So it means that we are so addicted to media. Okay, teacher, there is no doubt about it. कहते इसमें कोई शक नहीं है। There is no doubt. It's, you are absolutely right. Okay, you are true. Student 2, now another student, he start participation in this discussion. What he says, let me say that media has become a part of our life. कहते हैं कि तो फिर मुझे ये कहना है कि मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यानी we can say that now media is the integral part of our life. Okay, integral part, यानी student 2 says that media has become a necessary part of our life. एक अहम हिस्सा बन चुका है। It is not only inform us but also entertain us. कहते हैं, इन्हें सिर्फ हमें मालूम, मीडिया का काम सिर्फ हमें मालूमात नहीं बल्कि ये हमें entertain भी कर रहे हैं, तफरीह भी दे रहे हैं। Okay, it is we can say that it is a useful means of information and entertainment देखें ना, हम डिफरेंट तरीके से entertainment भी लेते मीडिया से। ओके, थ्रू डिफरेंट चैनल्स। ओके, ये आगे आ रहे हैं। ओके, we watch talk shows, movies, and there are many other channels who entertain us. Okay, cartoons, etc. Okay, now the next one. Teacher, absolutely right. Well, do you have any idea about the two major means of communication? Now the teacher, Miss Aisha, she asking another question. कहते हैं, yes, बिल्कुल दुरुस्त है, आप लोग जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या आपको मवासिलात के दो बड़े ज़राए के बारे में कोई अंदाज़ा है, कोई इंफॉर्मेशन है? यानी she, the teacher, यानी she is asking the student if whether they know anything about the two main modes of media, यानी two types of media. She was asking the question, what are the two types of media? So you know that there are two types of media: electronic media and print media. There are two ways of communication. There are two types of communication: electronic media and print media. Print media mean name से पता चलता है, जो print form में होता है। For example, newspaper, magazine, books. Okay, these are newspaper. This is called print media. Electronic media, internet, television, radio, all these are electronic media. So these are the two modes of communication, two types of media. There are two means of communication: electronic media and print media. Student third, when she asked the question, the student third, he answered the question. He said there are two means of communication: electronic media and print media. Okay, electronic media and print media. The media includes फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। इसमें देख ले, जो रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट है। अभी आप लोगों की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने पेपर में लिखना है देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। बट आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं लिखना, आप लोगों ने एग्जाम्पल भी साथ लिखने हैं। तो आप लोगों ने लिखना है प्रिंट मीडिया इंक्लूड बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, वाइल electronic media includes film, radio, television, internet. Okay,
It provides us information as well as entertainment. कहते हैं कि ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह entertainment भी फराहम करता है. Okay, so we can say that media gives them information and entertain this. Okay, now the next paragraph number yes. Okay students, so I hope it would be clear to you. Yes, बात समझ आ रही है बेटा? चलो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ. किसी भी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो. ओके, बट आप लोग अपनी जो माइक है उसको म्यूट रखे. ओके, म्यूट रखे, म्यूट यहाँ तक. ओके, सो ये बात समझ आ गई ना? उस्मान मुगल, यस सर. अब दोबारा बताएं एक मिनट. मैं कह रहा हूँ आप क्यों आर यू स्लीपिंग? नो सर, वो सर बाहर गया था एक मिनट. गौर से सुने. ओके, लेक्चर को गौर से सुने. मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, अच्छा एहसन, आप मुझे बताए बेटा क्या है आज के लेक्चर में? कम बच्चे क्यों आए हैं क्लास में? आप तो है ना प्रेजेंट, यू आर present. Don't worry about other people. Now I don't know why they are not taking these online session. Okay, so okay, now ये अच्छी बात नहीं है अगर वो रेगुलरली क्लास नहीं ले रहे हैं. ओके, बहरहाल जो भी प्रेजेंट है वो गौर से सुने. ओके, वो बाद में लेक्चर जाके सुनेंगे. ओके, teacher, good. It is through media that the world is web. Yes, yes, web. सर आज की डायरी डायरी में दे रहा हूँ. एक मिनट. वुड यू लाइक टू? अच्छा, आप डायरी का पूछ रहे थे. डायरी आप ये है कि आप लोग आज ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ ना, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ से, आप लोग इस चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन देख ले, एक बार रीडिंग कर ले, बैठ के रीडिंग कर ले. वर्ड्स जो मुश्किल वर्ड्स है उसकी मीनिंग याद करे और इंग्लिश ये उर्दू ट्रांसलेशन याद करे और साथ स्पेलिंग की प्रैक्टिस करे. ओके, इंशाल्लाह कल जब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे ओके तो बाकी क्वेश्चन आंसर सेंटेंस यूजेस वगैरह वो हम कल कर लेंगे. ओके, ओके सर. यस कासिम. सर हमारे जो वर्ड मीनिंग होंगे वो इंग्लिश में हमें लिखने होंगे या उर्दू में जो पेपर में आएंगे? तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप लोगों को जो प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने सिर्फ उर्दू मीनिंग लिखी है. नो, आप लोगों ने इंग्लिश मीनिंग भी साथ याद करनी. उर्दू मीनिंग तो इसलिए होती है कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, सो ट्राई टू लर्न. सर यस, सर उर्दू इतना जरूरी नहीं है ना, ज्यादा जरूरी इंग्लिश है ना? हाँ ज़रूरी इंग्लिश है. एंड उर्दू इज़ फॉर योर, आई मीन फॉर योर कॉन्सेप्ट. अभी हर चैप्टर में से, इसके अलावा बेटा और चैप्टर में से आप लोगों ने मुश्किल वर्ड की मीनिंग और साथ स्पेलिंग निकालनी है. फॉर एग्जांपल अभी पोलाइटली की स्पेलिंग क्या है, एंशियसली का स्पेलिंग क्या है, इंफॉर्मेशन का. इस तरह हमारे पास आइडियंस का स्पेलिंग देख ले, एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट का स्पेलिंग देख ले. आप कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें कि एंटरटेनमेंट की क्या है. ओके, सर ये ट्रांसलेशन में भी वर्ड मीनिंग आएंगे या खाली यूनिट के वर्ड मीनिंग आएंगे? देखिए ना पेपर में तो इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट जो आपके 20 MCQs होते हैं कासिम, फर्स्ट 20 MCQ, तो मैं आप लोग के साथ पेपर शेयर करूँगा किसी दिन. ये 9th क्लास के पेपर आप नेट पे भी देख सकते हैं. आप बुक शॉप जाके वहाँ से पुराने पेपर भी ले सकते हैं. उसमें ये होता है कि MCQs वाले पार्ट में जो देखिए ना, मैंने आप लोगों को एक बार क्लास में बताया, फर्स्ट 5 MCQs टेंसेस से होते हैं, फिर उसके बाद 4th MCQ स्पेलिंग के हवाले से होते हैं. नेक्स्ट 5 MCQs आपके सिनोनिम और एंटोनिम के होते हैं कि अंडर राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. वो इस तरह होते हैं. MCQs में देते हैं ना, ऑप्शन देते हैं, जिस तरह आप लोगों ने हजरत अस्मा के चैप्टर में जो है काफ़ी, और बाकी चैप्टर्स में जो अंडरलाइन वर्ड है रिव्यू एक्सरसाइज से भी देते हैं. ओके, कभी कभी यहाँ
बट जो लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में जो ग्लोसरी पोर्शन है कम से कम वो आप लोग जरूर याद करें, ओके। और स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें क्योंकि उसका भी 4 MCQs का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर चैप्टर में मुश्किल वर्ड होते हैं और आप लोग याद करें। इस तरह फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास अनपैरेलल है, डिस्पेंसेशन है, promulgation है, there are many dilemma, there are many words, okay। So I hope it would be clear to you, okay। Any question? Yes, Qasim, एक minute, just let me to unmute you। सर हम ग्लोसरी भी फिर याद कर लेना। हाँ, ग्लोसरी वाला याद करें, वो ग्लोसरी वाला याद करें, that is better, okay। Any question? ओके सर। बाकी स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन है? Yes, so we will finish the remaining paragraphs in tomorrow lecture, okay। Usman, yes, Usman would like to ask something। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर मोइन ने हमें सिलेबस भेजा है, ओवरऑल इंग्लिश का सिलेबस भेजा है, ये फर्स्ट मंथ का है या फर्स्ट सेमेस्टर तक? ये अभी आपका 9th का फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। अभी आप 9th का भी यही है, ठीक है। हमने ये सही है। डिसाइड किया अभी आप लोगों का जो ये क्लास चल रही है उसमें हम वो कोर्स दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप स्कूल आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। सही। फिलहाल आप फर्स्ट जो 5 चैप्टर जो आप 8 में पढ़ चुके हैं। यस हमाद, म्यूट योर माइक। हमाद, would you like to say something? सर जी आज डरी क्या है? खैर ये है, मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ और साथ अभी मैं ये जो फाइल में पढ़ा रहा था ये आप लोग यहाँ से सेंटेंस सॉरी ये उर्दू ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग एंड प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें, ओके। और उर्दू ट्रांसलेशन याद करें। कल की डायरी में आप लोग बैठ के क्वेश्चन आंसर और सेंटेंस बाकी कर लें। यस, एनी क्वेश्चन? कोई सी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है इंग्लिश में सब्जेक्ट में तो आप मुझे यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। यू आर वेलकम। क्वेश्चन क्या करें, आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप लोग बेशक क्वेश्चन क्या करें। दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर नॉलेज, दिस इज द वे टू मेक योर concept clear। ask a question is your right, okay। you can ask question in the last of every session there is question answer session। so आप लोगों समटाइम ये होता है कि जब हम घर में बैठ के पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारे जहन में तो आप लोग काइंडली उसको उस टाइम लिख दें किसी पेज पे। कल जब भी कोई क्लास हो